So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So much love money for you guys. So today we're gonna discuss about the structure of the neuron cell, and in my last video we discussed about the function of the neuron cell. So I hope the most of the things are clear to you. So let's get into it. So let's first of all go with the picture of the neuron. So let's try to make it. Okay. Here we have the nucleus. Right? We're going good. No, I don't think this part was alright. Mm-hmm. Okay. Take care, we're going good. Mm. So yeah, this is our neuron cell. Let's now focus on the neuron cell. So first of all, if I discuss about the neuron cell. So first of all, we'll discuss about the body. So this part, like till here, it is known as like cell body. ठीक है, ये वाला part जो होता है, this part is known as cell body. This is known as cell body. This is our nucleus. ठीक है. Now, as we discussed, so I'm just removing it because it's not look so good because we have a lot to write. So I hope you guys have written. Now, in every cell we have cytoplasm, but here instead of cytoplasm we have the neuroplasm. So it's like this work would be the same, but here we will name it as neuroplasm. Okay, so don't just get confused over it. Just don't get confused over it. Now if we'll talk about this cell body, okay, the cell body is also known as soma. The another name of the cell body, it's an irregular body, you guys can say it is irregular in shape, and it's known as soma too. Then we have the cytoplasm, or you can say neuroplasm, in the center. Then we discuss about the nucleus. It is the, you know, giving the instructions to the cell what to do or what not to do. Moreover, in the last we'll discuss a lot of good things. Then in the cell we have some nesal bodies. अब now what are these? यहाँ पे हमारे पास कुछ nesal bodies होती हैं. Like in every cell we guys have discussed about the ribosomes. We know okay, in every cell we have ribosomes. So nesal bodies are like ribosomes to us. Okay, they are nasal bodies. These are ribosomes. They work as ribosomes. They are small granular, particles, you can say structures. Okay, then we have the neuron fibrils. Neurofibrils. Okay, neurofibrils work is like to transport the nasal bodies, ठीक है, आउट ऑफ द सेल, मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम इज डन बाय न्यूरोफिब्रिल्स. आफ्टर दैट वी हैव गोल्जी apparatus. What does the Golgi apparatus do? Golgi apparatus, oh my god, what happened to this? The Golgi apparatus actually does the packaging of the nasal body. Obviously Golgi body is known as the post office of the cell. तो मतलब ये पैकेजिंग करता है and then it transfers back तो न्यूरोफिब्रिल्स के जरिए वो ट्रांसफर हो जाता है. Then we also have mitochondria. It is very important here. It provides us ATP, which is the currency of energy.
ठीक है. So these are like the most important things into the cell body. So we discussed about the nucleus, we discussed about the neuroplasm, we discussed about the you know, nucleus, nasal bodies, and neurofibrils, mitochondria, Golgi apparatus, and etc. ठीक है. Now let's discuss about the dendrites. So this is, you know, the topic, dendrites. So dendrites are actually small branches, or you can say short branches, which has the work. ठीक है. ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं नर्व इम्पल्सेस. ये क्या रिसीव करते हैं, ये लोग ये रिसीव करते हैं हमारे पास केमिकल इम्पल्सेस या केमिकल मैसेजेस रिसीव करते हैं ये, एंड इट ट्रांसफर्ड, और फिर ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है ऑल ओवर टू दी न्यूरॉन. ठीक है. ये ऑल ओवर टू दी न्यूरॉन ट्रांसफर करता है. तो ब्रांचेस जो होते हैं वो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम साइनेप्स. हेयर, अगर यहाँ पे ये एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये एक न्यूरॉन सेल है, तो यहाँ पे भी दूसरा न्यूरॉन सेल होगा यहाँ पर इस तरह पे. तो यहाँ पे ये साइनेप्स है, द स्पेस बिटवीन, आई टोल्ड यू गाइस अबाउट दिस. तो यहाँ से साइनेप्स से वो क्या करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं केमिकल मैसेजेस, वो रिसीव करेगा. ठीक है. एंड हेयर हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास कुछ क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो रिसीव करते हैं इन चीज़ों को. ठीक है. ये इन सेंसेस को रिसीव करते हैं. डेंड्राइट्स के ऊपर हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो आके वो रिसीव कर पाए मैसेजेस. उसके बाद अगर इफ़ वी टॉक अबाउट on the dendrites, we also have some spines. Now what are spines? Spines are something which increases. here हमारे पास कुछ डॉट स्पाइंस होती हैं, बड़े बड़े होते हैं थोड़े से, जितने मैं बना रही हूँ उतने नहीं होते हैं. ठीक है. सो वॉट इट डज, इट एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यू नो केमिकल मैसेजेस को रिसीव कर पाए. ठीक है. सो दिस इज द वर्क ऑफ द डेंड्राइट्स. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेल बॉडी. नाउ लेट्स कम इनटू द एक्सॉन. जो हमारा एक्सॉन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है. दिस इज लाइक एक्सॉन. सो एक्सॉन जो होता है इज अ लॉन्ग ब्रांच, हम बोल सकते हैं, विच बिकेम फ्रॉम द टैपरेड एरिया. टैपरेड एरिया क्या होता है, जो ऊपर से थोड़ा ऐसे हो और नीचे से वो पतला हो. ठीक है. सो इट्स लाइक अ टैपरेड एरिया. सो इट हैज़ ज़ाइनॉन. ठीक है. विच जो ट्रांसफ़र करता है हमारे, बिकॉज जब अगर वो न्यूरॉन के अंदर आ गए हैं तो वो क्या हो गए, वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हो गए. तो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है टू दी टर्मिनल बटन्स तक. ये टर्मिनल बटन्स होते हैं. ठीक है. द ब्लू वन. ओके. So I hope it is clear. So then we have Zynon hillock. What is the work of Zynon hillock? ये चीज़ जो होती है, ठीक है, till here, this is known as Zynon hillock, जो like the starting point of the axon, known as axon hillock. ठीक है. आफ्टर दैट दे आर एक्चुअली यूजुअली मतलब ये लॉन्ग होते हैं, तो इसलिए ये जो ज़ाइनॉन हिल्लॉक से, एक्सॉन हिल्लॉक से, ये हमारी पूरी क्या होता है, एक्सॉन स्टार्ट होती है. एंड कुछ हमारे पास जो एक्सॉन होते हैं वो 1 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है. जहाँ ठीक है 1 मीटर लॉन्ग होते हैं. डेंड्राइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, एंड एक्सॉन जो होते हैं वो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं. नाउ इनटू दी न्यूरॉन, मतलब अब हमारे पास एक्सॉन के यहाँ पर भी we have some parts. ठीक है. here we have some parts like indicating it. ठीक है. here we have some parts. so number 1 we discuss axon hillock, जो कि एंट्रस पार्ट हो गई, जो टेपरेट पार्ट हो जाता है एक्सॉन का. then we have एक्सोलीमा. एक्सोलीमा इज एक्चुअली अ लेयर, एक लेयर होती है जैसे एक्सॉन जो होता है वो कवर्ड होता है. एक्सोलीमा. ठीक है. लेट मी राइट इट. एक्सोलीमा. देन हमारे पास होती है मिथाइलिन शीट. ठीक है. मिथाइलिन नहीं होता, माइलिन शीट होता है. सॉरी, बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर मिथाइलिन ब्लू. ओके. सो माइलिन शीट इज़ अ शीट विच कवर्स. ठीक है. एक फैट की लेयर होती है या लिपिड की लेयर होती है जो कवर कर रही होती है हमारे एक्सॉन को. तो दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ आवर माइलिन.
ठीक है, ये हमारी माइलिन शीट होती है, जो क्या कर रहा होता है, जो कवर कर रहा होता है हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन को। ठीक है, फैटी शीट होती है, फैट की शीट होती है। देन वी हैव शिवान सेल्स। शिवान सेल्स क्या होते हैं? शिवान सेल्स आर इनसाइड द माइलिन शीट। जो हमारे पास माइलिन शीट है, दिस माइलिन शीट के पास ये जो डॉट्स हैं, ये न्यूक्लियस है किसके? शिवान सेल का। तो शिवान सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनटू दी माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट का काम क्या होता है? माइलिन शीट जो होता है वो इंसुलेटर होता है। क्या करता है? वो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इधर उधर जाने नहीं देता, वो सिर्फ सीधा, ताकि वो सेम डायरेक्शन में हमारे पास टर्मिनल बटन्स तक चले जाएं। ठीक है, वो ये काम करता है। देन हमारे पास आता है नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है? द नोड्स ऑफ रेनवियर इज द स्पेस बिटवीन द माइलिन शीट। जो ये स्पेस आ रही है ना, दिस इज, यहाँ पे भी माइलिन शीट दी गई, स्पेस इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देन वी हैव टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स ये रहे हमारे। What are these? These are the end of the zynon। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल के एंड भी होते हैं, और ये काम क्या करते हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो मैसेजेस यहाँ तक आ रहे होते हैं, इनको न्यूरो ट्रांसमीटर से वो क्या हो जाते हैं? केमिकल मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो टर्मिनल बटन्स होते हैं वो दूसरे सेल के डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड देन फिर उससे क्या होता है? हमारे पास साइनेप्स के हिसाब से मदद से हमारे जो केमिकल मैसेजेस या न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। I hope this video is clear to you guys, and if you guys have any questions, you guys can ask me in the comment sections and I'll be there. Moreover, something else if I want to tell you is about why the neuron cell is different। ठीक है, वो different क्यों है बाकी सारे cells से? तो there are two reasons। the neuron cell जो होता है, इट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, पर उसके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। इट डू नॉट हैव डी। ठीक है, क्रोमोसोम्स नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सेल डिवीजन नहीं होती न्यूरॉन सेल के अंदर। मतलब न्यूरॉन सेल्स अगर वो डैमेज हो गए तो हो गए, वो नए नहीं बनेंगे। वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो बनाता है, जनरेट करता है, पर वो खुद से जनरेट नहीं होंगे। सो या वो खुद से जनरेट नहीं होंगे। सो दिस इज़ द थिंग, एंड देयर इज़ वन मोर डिफरेंट। हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रांचेस, और एक्सॉन होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जो बाकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर लाइक द टू मेन differences between the other cells and this cell. Then we have एक टिश्यू होता है जो सपोर्ट करता है दिस न्यूरॉन, दैट इज़ नोन गैलियन टिश्यू। ठीक है, जो नर्व इम्पल्सेस को सपोर्ट करता है। एंड या वी आर ऑलमोस्ट डन। एंड जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो हमें स्टिमुलाई के बारे में बताता है। स्टिमुलाई क्या होता है? दैट इज़ द चेंज इन एनवायरनमेंट। फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई टच समथिंग कोल्ड, ठीक है, सो इट्स अ चेंज इन एनवायरनमेंट, राइट? एंड माई सेंसरी न्यूरॉन tells to the brain, and my brain gives me the messages through the motor neuron. So this is the entire system goes on. So thank you so much if you liked my video. If you guys have any questions, you guys can let me know and I'll be answering in the comment sections. So this was about the nerve cell. There was a detailed explanation. I told you about the structure and the functional use of the nerve cell. Thank you so much for watching my video.